Last class, day before yesterday, I started off the chapter and you learned that music is the one which connects us, what we call as everyone in this world. आप कहीं पर भी देखोगे तो music is common to all of us. Whether you are hearing a what you call as classical music or a fusion or anything, but music is the same. When we talk about music, तो एक चीज हम सबको पता है वो ये है कि म्यूजिक 7 सुरों से ही बनता। वेदर इट इज, हम उसको जो है शायद आरो अवरो बोलते हैं, वहां पर जो है दे टॉक एज नोट्स, बट इट हैज अ कॉमन थिंग. So this chapter is all about the very first, the theme is that it is music which connects us. Music has no language. And then we have studied about the story of Evelyn Glennie. Agar aap log, if you Google, you will find she is still there. You can find that how, matlab ki she is an international percussionist. Can you imagine? It's not like a story. It is not that it is there in your book. It is a reality. And that's where it inspires us. Today we are going to do the second one, that is about our own country, Bismillah Khan, the Shehnai Maestro. We call him as Shehnai Maestro, Ustad हम कहते हैं. The Shehnai of Bismillah Khan. ये जो पिक्चर्स लिखी हुई हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स. कोई फ्लूट प्लेयर है, कोई सितार वादक है, कोई तबला वादक है. जाकिर मतलब कि जाकिर हुसैन साहब का भी है इसमें. दे आर वन. एंड थिंक अबाउट द शहनाई मैस्ट्रो, जिन्होंने इस छोटे से एक शहनाई, टुडे शहनाई इज, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिनोनिम टू मैरिजेस. आज की डेट में हम लोग ये नहीं बोलते भाई शादी, हम कहते हैं शहनाई कब बजा रहे हो. जैसे हम बोलते हैं ना, हाथ पीले कब कर रहे हो. सिमिलरली शहनाई बजाना इज सेड टू बी वन ऑफ द सिनोनिम, मतलब वहां तक उस शहनाई को लेकर आना. दैट वाज परहैप्स बिस्मिल्लाह खान. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi. आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि why did Aurangzeb ban the musical instrument pungi? Because it had a shrill, shrill होता बहुत तीखा, अनप्लेजेंट साउंड, मतलब उनको उसकी जो आवाज थी काफी तीखी लगती थी, वेरी अनप्लेजेंट. पुंगी बिकेम द जेनरिक. नाउ जेनरिक इज नॉर्मल, जो हम लोग जैसे मेडिसिन है, तो अगर आप देखो तो मेडिसिन के अलग अलग नाम होते हैं. पैरासिटामोल, देन मतलब कि कैलपॉल. अगर आप उनके बेसिक मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर को देखोगे तो दे आर जेनरिकली दे आर सेम. हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लाइक हम पीसीएम या फिर डोलो ऐसे अलग नाम से जानते हैं. दैट्स बिकॉज ऑफ द कंपनी, बट जेनेरिक वो वही होता है, द मेन मेडिसिन, तो जेनेरिक उसको बोलते हैं. फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. रीडेड मतलब जिसमें आपके वो छेद बने होते हैं ना, वो. तो ये उन्हीं में से एक था, मतलब ये उसी कैटेगरी में आता है. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. मतलब there was a person जो वैसे प्रोफेशनल म्यूजिशियन को के ग्रुप को बिलोंग करते थे, लेकिन बाय कास्ट देवर नाई बार्बर.
He chose a pipe with a natural hollow stem which was longer and broader than Pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उन्होंने एक खोखला, जो आपका, अगर आप बांसुरी को देखोगे ना, तो जो बांसुरी होती है उसके अंदर हम उसको बांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज बेसिकली हॉलो इन दी मिड. When he played, closing and opening of the holes, so melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसी पुंगी का जो मेन, जो जिससे पुंगी बनती है, उसी से उन्होंने जो है इसको बनाया. The instrument was so different from pungi, so it had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah chamber, Shah matlab royal, and was played by a barber Nai, it was called Shehnai. मतलब आपके पेपर के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ शहनाई acquired its name. And if it is your what you call as project, so you may be asked to make a project on the different kinds of reeds. आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है. The sound of Shehnai began to be considered auspicious. As I told you, auspicious मतलब something which is good. हम मंत्र पढ़ते हैं ना मॉर्निंग में, पूजा करते हैं. And for this reason, it is still played in temples and indispensable. Indispensable matlab which cannot be separated of any North Indian wedding. In the past, Shehnai was part of Naubat. नौबत होते हैं जो नवाब, जो रॉयल कोर्ट होते हैं उनके लिए नौबत खाना. और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट, जो उनके नवरंग बोलते थे उसमें से एक होता था नौबत. Till recently, it was only used in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और पहले ये शाही दरबार में था, जो 9 आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजते थे, नौबत उनमें से एक था, लेकिन उसको एक मेन फिगर घर घर में लेकर आने का जो पूरा क्रेडिट है, that goes to Ustad Bismillah Khan. As a 5-year-old, Bismillah played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. But that is his birthplace. जो Dumrao है, that is his birthplace. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chheta, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaja. मतलब नॉर्मली वो लोग वो वहां जाते थे मतलब भजन करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनको वो लड्डू मिलता था जो 1.25 किलो का होता था, सवा मणि प्रसाद बोलते ना वैसे. एंड दिस हैपेंड 80 years ago. बहुत पहले, दट मतलब कि बहुत ही पुरानी बात है जब वो ऐसा होता था, जब महाराजा वगैरह होते थे, ये उस वक्त की बात. And this little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. और ये वही बच्चा है जिसने इतनी दूर ये गया. यहाँ पर the boy has traveled far to earn मतलब from a simple boy earning the laddus to get Bharat Ratna. ये जो सफर है ये कोई आसान सफर नहीं था. This was a very मतलब कि म्यूजिकल जर्नी. That is the journey of his life. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to the well-known families of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was Shehnai Nawaz of Bhojpur Singh Fort. His father Paigambar and other paternal ancestors were also Shehnai players. Paternal मतलब पिता के साइड में, फादर के साइड में. The young boy took
टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उन्होंने भी म्यूजिक शुरू स्टार्ट कर दिया। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle, मतलब मामा जी, in Benares, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। हालांकि उसके जो पेरेंट्स थे, फादर थे, दे वर ऑल्सो शहनाई वादक इन दी रॉयल कोर्ट, लेकिन उसको उनको अपने मामा जी के जो प्रैक्टिस था वो ज्यादा अच्छा लगा। Ali Baksh to the Vishnu, sorry, soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Benares, where Baksh was employed to play the Shehnai. This is आपके पेपर में आता बच्चा, दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। मंदिर हिंदू का, लेकिन जो वहां शहनाई वादक थे, ही वॉज अ मुस्लिम। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated. Captivated मतलब कि he would be mesmerized, वो एकदम अचंभित थे। उनकी एकदम ऐसा लगता था that the music has captured him, हो गए। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji, Mangal Maiya, and banks of Ganga became young apprentice. Apprentice का मतलब होता है बच्चा, वैसे तो जो हमारे नीचे काम करते हैं, the trainees, जिनको ट्रेन किया जाता है। सी नाउ देर आर डिफरेंट वेज, ट्रेनी को जब हम बोलते हैं तो अलग अलग तरीका होता है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग होती है जब आपको रियल किसी चीज पर आपको जो है ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे लक्कड़हारा जो होता है, कारपेंटर, ही गिव्स द ट्रेनिंग टू हिज, मतलब कि जो उसके नीचे काम करते हैं उनको लक्कड़ बनाने का काम देते हैं। जो मैकेनिक्स होते हैं वो भी ऐसे ही देते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो अप्रेंटिस ट्रेनिंग। became the young apprentice favorite haunts मतलब the place where he could practice in solitude मतलब lonely, अकेले, alone। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। पहले तो शहनाई के रेंज में इस तरीके के राग गाना मुश्किल था, लेकिन वो वहां पर इतना खो जाते थे, पानी की आवाज के साथ वो इतना धुन में बह जाते थे कि he would play all those ragas which were difficult to play। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. And at the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और उसको जो है, दिस इज अलिट्रेशन, और उनको जो है पीछे से थपथपा के बोला, मेहनत करो और तुम देखना। With the opening of AIR in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है कि when and how he got his first break, मतलब उनको एक नया ब्रेक कैसे मिला। सो दैट वाज व्हेन, उस जमाने में क्या होता था बच्चा, रेडियोज वर नॉट लाइक व्हाट वी हैव टुडे। आजकल तो रेडियो में आप, और फिर आप लोग जो रेडियो सुनते हो, दे आर मतलब नाउ वी जो हम सुनते हैं वो आपके एफएम चैनल्स हैं। और जो एफएम चैनल्स होते हैं दे आर ऑल पेड चैनल्स। लेकिन अगर आप एआईआर सुनोगे, ऑल इंडिया रेडियो, जो आपका मतलब कि मीडियम वेव वाला है, एमडब्ल्यू वाला चैनल, उसमें वैसे तो बहुत पुराना 106.4 एंड आई थिंक 102.6 वाला चैनल है, दैट इज आपका मीडियम वेव। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, मतलब इन द बिगिनिंग व्हेन एआईआर वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो द सॉन्ग्स, तब तो म्यूजिक ऐसा नहीं था, मूवीज नहीं होती, वी डिड नॉट हैव द मूवीज। इवन जो सिंगर्स होते थे ना, वो लोग लाइव गाते थे, दे यूज टू सिंग लाइव। एंड वॉट एवर, क्योंकि इंडिया के अंदर टीवी आया था 56 में, 1956 में, तो जो सब कुछ जो है इट वॉज ऑन द रेडियो ओनली। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन इंडिया वॉज ऑल्सो फाइटिंग फॉर इट्स फ्रीडम,
तो फ्रीडम फाइटर्स के जो भी मतलब कि इवेंट्स हैं, एवरीथिंग वाज ऑन द रेडियो। तो उस वक्त में रेडियो वाज वेरी प्रोमिनेंट। आज अगर आप रेडियो में टीवी में आते हो तो इतनी बड़ी बात नहीं है, उन दिनों में रेडियो में आना वाज वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि सिर्फ नामी बिल्कुल चुने हुए लोगों को ही रेडियो या टीवी में लाते थे। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर। often heard मतलब जिसको लोग बहुत ज्यादा सुनते थे। वेरी फेमस, वेरी मतलब कि जिसकी बहुत डिमांड थी। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah became the first Indian to greet the nations with his शहनाई। क्योंकि स्पेसिफिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको लेटर लिखा था और इनको बोला था कि आकर आप जो हो, व्हेन व्हेन मतलब कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होगा तो आपको शहनाई बजानी है। He poured his heart out into Rag Kafi from Red Fort to an audience which included Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। पेपर में भी ये आया हुआ है कि उनके उस स्पीच का नाम क्या है। दिस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी इज अवर ट्रायम्फ, अपनी डेस्टिनी को जीतना। दिस वॉज द वन विच पंडित लाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत फेमस स्पीच है, विच ही गेव टू द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था तो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन हमारा शहनाई वादक के म्यूजिक के साथ हुआ था। Bismillah has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken, matlab he was so attracted towards his music in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Souvenirs का मतलब होता है something which is in memory। सोवेनिर्स जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हम सामान खरीद के लाते हैं। आजकल तो वो फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हैं, या फिर कोई भी उस जगह का कोई सामान, जैसे हम लोग ताजमहल जाते तो भी ब्रिंग दैट ताजमहल लेकर आते हैं। सो दैट इज आपका सोवेनिर। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument Goonj Uthi Shehnai, a very famous movie. This is one of the very famous movie जिसमें लता मंगेशकर का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, दिल का खिलौना हाय टूट गया। The film was a hit, and one of the Bismillah's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be nationwide chart buster. This is one of the very famous songs. Despite this huge success in the celluloid, बेटा सेल्यूलॉइड होता है आज की डेट पर हम फिल्मी वर्ल्ड बोलते हैं, उसको उन्होंने सेल्यूलॉइड बोलते थे उस वक्त में। सेल्यूलॉइड मतलब इवन दो उनकी मूवी एक नहीं दो तीन मूवीज थी जो उनकी काफी हिट हुई थी, लेकिन फिर भी वो कभी मूवीज को सिंग मतलब कि ही डिड नॉट वांट टू गिव हिज म्यूजिक टू द मूवीज। व्हाई? व्हाई? दिस इज बिकॉज उनका मानना है कि जो आपकी मूवीज है दे आर ऑल आर्टिफिशियल, whereas music is something which is in real. Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunjuti Shehnai and Vikram Srinivas Kannad Sannadi Appana. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the world. जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने मूवीज में गाने देना क्यों बंद कर दिया, उन्होंने कहा मुझे ये जो दिखावटी है, आर्टिफिशियल, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक द ग्लैमर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट इज अ फ्रेज, एक मुहावरा है। मतलब उनके इसके साथ ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल।
Bismillah was the first to be invited to the prestigious Lincoln Center Hall in USA. उस वक्त में यूएस में इंडियंस को बुलाना was very very, you can say, rare. He also took part in the World Exposition in Montreal, Montreal आपका Canada, in the Cannes Art Festival, in the Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran, Tehran is in Iran, was named after him, Tahar Mosik Ustad Bismillah Khan. मतलब वो इतने फेमस थे कि he was invited by different areas अराउंड द ग्लोब, यूएस क्या, कनाडा क्या, इनफैक्ट एक ऑडिटोरियम ही उनके नेम पर रखा गया है. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी उनको मिला है, विच इज वेरी रेयर कि एक इंसान को इतने सारे, प्लस आपको भारत रत्न. इन 2001 Ustad Ali Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, Bharat Ratna. पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह आपके अपने फील्ड के लिए होता है. भारत रत्ना इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड विच इज गिवन फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस फॉर द एरिया. विद द कोवेटेड अवार्ड, मतलब कोवेटेड मतलब जो हम चाहते हैं, resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. जब उनको भारत रत्न मिला था तो उन्होंने अपने अवार्ड को छाती से लगा लिया था. All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even in the West is now coming to learn our music. वो बिल्कुल है. आप म्यूजिक स्कूल्स में चले जाओ, जैसे इंडिया से लोग जाते हैं टू रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ऑल, similarly people across the world come to India for learning the music. My real cousin's daughter पृथ्वी, शी इज अ फ्यूजन सिंगर एंड बहुत रेयर होता है, मतलब टू बी वेरी प्राउड, ऐसे मैं बुआ हूं तो बहुत प्राउड हूं. शी इज वेरी 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 इंटेलिजेंट, मतलब वो उन्हीं बच्चों में से जो टॉपर की टॉपर रहती थी, जिसके कभी 100 में से 99 नहीं आते थे ऐसी. बट शी हैज बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बेंगलुरु एंड देन यूएस ओनली. शी डिसाइडेड टू pursue music as her career. Can you imagine? मतलब हम, not to be proud but reality class 9 in my मेरे मामा जी के घर में all are engineers. All the 4 brothers are engineer, उनके सबके बच्चे engineer सब. लेकिन पृथ्वी wanted to become a musician. She wanted to come up with a fusion of Indian and Western music. There I saw that music is also, मतलब कि इतना large profession है. She has done her graduation from Boston University and right now she is, you know, working with some university. She has created many music. मतलब उस चीज, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको जोड़ती है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर, ये आपके पेपर का जिसके भी क्वेश्चन ये वाला आएगा, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर एग्जाम. खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से लोग उनको खान साहब बुलाते हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट पावरफुल वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब पूरी दुनिया घूमे हैं वो, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है उनका अपना, जहां पर वो पैदा हुए थे, डुमराव, एंड बनारस, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था लर्निंग म्यूजिक. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the US, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. मतलब उसने यहाँ तक बोला कि मैं वैसा ही पूरा एक ऐसा वो बना दूंगा, आपको ऐसा लगेगा बनारस में हो पूरे टेम्पल्स वगैरह. तो खान साहब ने पूछा, तुम वहां पर रिवर गंगा ला सकते हो? Later, he is remembered to have said, that is why whenever I'm in a foreign country, I keep yearning. Yearning मतलब longing, किसी चीज के लिए बहुत desire करना.
टू सी हिंदुस्तान। मतलब मुझे बाहर रहना इतना पसंद नहीं है। व्हेन आई एम इन फॉरेन कंट्री आई वांट टू कम बैक टू हिंदुस्तान। while in Mumbai I think of only Banaras and Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumrao। मतलब उनका कहना है कि दुमराव, बनारस, देन मुंबई, देन इंडिया, देन फॉरेन। तो उनके लिए उनके जो एरिया जहां वो पैदा हुए थे, जहां वो बड़े हुए थे, दे आर हिज ग्राउंड। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devote matlab very devoted Muslim like him can naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. That's a perfect example of what we call as secularism. Ustad Bismillah Khan passed on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral. State funeral मतलब उनको तोपों की सलामी दी जाती है। उनका जो मतलब उनकी जो डेड बॉडी होती है दैट इज गिवन एज अ फ्लैग के साथ उनको दिया जाता है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मोर्निंग। मतलब एक दिन सारे के सारे फ्लैग्स आपके जो हैं देवर उनको नीचे झुका के रखा गया था। फॉर वन डे देयर वाज नो सेलिब्रेशन, उसको हम बोलते हैं नेशनल मोर्निंग। इफ यू सी Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think to move to Pakistan? मतलब ये एक उनका इंटरव्यू है जिसमें उनसे पूछा गया कि आप तो मुस्लिम हो, तो आपको पाकिस्तान नहीं जाना था। तो उन्होंने कहा मी गॉड फॉरबिड लीव बनारस, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस। I crossed the border just to say I've been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistani, salam alaikum to the Indians. I had a good luck. मतलब यहाँ पर जो ये वर्ड वो कह रहे हैं ना, मैंने पाकिस्तानी को नमस्कार कहा, इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा, का मतलब ये है कि आई एम अ प्योर इंडियन। बीइंग अ मुस्लिम आई नो हाउ टू गिव माय सल्यूट, बीइंग एन इंडियन आई आल्सो नो हाउ टू सल्यूट हिंदू। So I don't believe in this Hindu Muslim. I am a secular person. I don't believe to go to Pakistan. I believe in my own motherland. उनको अपने उस मदरलैंड से सबसे ज्यादा प्यार। So this is the chapter what we call as sound of music. These are some of the important questions which will be there in your exams. For those this chapter is coming उनके लिए कि why Aurangzeb banned the Pungi, then how Shehnai is different from Pungi, और फिर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को कैसा एक नया मतलब कि ब्रेक दिया, हाउ ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक। देन मतलब कि वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले ऑन 15th August, why he refused to start a Shehnai school in US, and then tell two instances he loved India and Benares। ये तो आपके वो है जो इस चैप्टर से है। Plus you may be having a question which is based on the theme, and I have been repeatedly telling that theme इसका जो है वो है म्यूजिक। एंड दोनों चैप्टर्स में एवेलिन who is not an Indian, who is a Scottish, and second thing बिस्मिल्लाह खान who is an Indian। कैसे दोनों का जो है दोनों ने जो है म्यूजिक को अपना जो है एक लाइफ लाइफ बना। they made profession out of their music, and how music has connected us to different parts of the world. For Evelyn, you can definitely go through the Google, you will find the things about him, her. You can find the pictures about her, you can find about the concert she's taking, you can read more about her. So this is the chapter, the sound of music.